electromagnetic waves. So obviously why they are wave from AC means alternating current, even in from generator. Now we know the magnetic fields which by changing the magnetic flux we can generate EMF, by using which we can create current, and we find the equation of EMF or current are in the alternating form, means sinusoidal form, sine or cos, and that's why they are waveform. So in electromagnetic wave, Maxwell first notice it that in electromagnetic wave, not only the magnetic field, also the electric field also propagate. So that's why in electromagnetic wave, electric and magnetic field both are present, and that is in terms of waveform. Okay, so first of all, according to Maxwell, Maxwell modified Ampere circuital law, and he introduced an extra term that is called the displacement current. So my first heading is Maxwell's displacement current. So Maxwell displacement current, which is represented by ID, we know the current due to electric field, that is dq by dt also, because the flow of charge particle, and from electric flux we know 1 by epsilon naught into q from the Gauss's theorem. So from that, what we can say, charge is epsilon naught into electric flux. So displacement current, we can say epsilon naught flux E by dt, which is epsilon naught d phi E by dt. And we also know electric flux, that is electric field into area. So we can say EA by dt, which is epsilon naught A dE by dt. Is it okay? Everyone, you understand? We also know one more thing, the electric field, the relation between electric field and electric potential is electric potential is E into D. So E is V by D. So we can write epsilon naught A, in place of E, we can write V by D by dt, which is epsilon naught A by D into dV by dt. And epsilon naught A by D is what? Capacitance dV by dt. So that's why overall the displacement current we can mention in terms of epsilon naught d phi E by dt. We can mention it in terms of epsilon naught A dE by dt, and we can say it capacitor into dV by dt. These all are representing displacement current. Is it okay to all of you? Hello? Hello? Yes, sir. Is it Yes, okay sir. for everyone? Hmm. So next one, so this one is Maxwell extra introduced, and that he said that is the displacement current, and after that he modify Ampere circuital law. So what is Ampere circuital law? We all know from magnetism, electromagnetic induction, we know magnetic field. Ampere circuital law is B dot dl is mu naught I close. I think you all know that this one is the Ampere circuital law. Is it okay, everyone? Yes, sir. Now Maxwell modify it. So according to Maxwell Ampere circuital law, he modified Ampere circuital law, and according to Maxwell, B dot dl is equals to mu naught times IC plus ID. That IC is called the conduction current and ID is called the displacement current, and overall
this I, which is the IC plus ID, is called the continuous current. Continuous current. IC is the conduction current. Means you need a conductor. That means magnetic field generate this current, and this one is the displacement current, which is generated by the capacitor or by the electric field. So the combined of these two is the continuous current. Is it clear, everyone? So basically Maxwell modified this one, and this one is very, very important. And so many questions are in examination, they are asked from this, and they ask you very small, very silly question. And as the student, they don't have proper information, because most of teacher skip that chapter, that very important chapter, electromagnetic waves. So because of that, so many students confuse which one is conduction current, which one is displacement current, what is conduction current, what is displacement current, and what is continuous current. So try to understand this. And that one also sometime ask to prove that continuous current is the resultant effect of continuous current and displacement current. Individually, maybe they are not exist. Try to understand, individually maybe they are not exist, but overall they exist. Very बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है. देखो ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया. अब देखो, अकॉर्डिंग टू रूल इसके अंदर करंट तभी फ्लो होगा जब ये सर्किट कंप्लीट है, मतलब बीच में कोई कट नहीं है. तो लेकिन यहाँ पे तो कट है, तो ये तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए. होना चाहिए ना, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब वो कंटिन्यूअस पाथ होता है. यहाँ पे तो ब्रेक है, तो ये जो कंडक्टर पार्ट है इसमें कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, और ये जो मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट इज 0 एंड कंडक्शन करंट इज प्रेजेंट, और ये जो कैपेसिटर पार्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रेजेंट बट कंडक्शन करंट नॉट पॉसिबल. मतलब हमें क्या मालूम था? हमें ये मालूम था इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है. दैट जो कोई करंट फ्लो नहीं करता, दैट इज अ कंडक्शन करंट. और हमें ये भी मालूम है कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो तभी करेगा जब वो क्लोज लूप है, लेकिन ये मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं होगा. और ये दोनों को मिला के होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस करंट. मतलब अगर मैं इसको एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दूं, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज देयर, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज देयर. देन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज के कारण करंट फ्लो होगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज के कारण करंट होगा. दोनों मिला के कंडक्शन करंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जनरेट होता है. अब देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का बात करूं, ये जो कंडक्शन करंट है ये क्या है? dq by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल कंडक्शन के अंदर से होता है. लेकिन यहाँ पे ओपन स्पेस है, तो इसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, that is the definition of displacement current, which is epsilon naught phi e from Gauss's theorem 1 by epsilon naught q. So what we can write, 1 by epsilon naught q dt, which is dq by dt. तो ये एक दूसरे का क्या है? काउंटर पार्ट है. इज इट अंडरस्टूड, और यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? यस सर. अब देखो क्वेश्चन किस तरह का देता है. क्वेश्चन कितना सुंदर देता है. तुम्हें बड़ी सुंदर से वो एग्जाम में बोलेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. मानो तुम लोगों ने पूरा एकदम डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा फॉर्मूला लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट a dE by dt, और तुम्हारा पास दूसरा ऑप्शन है c dV by dt. ऐसे करके कैलकुलेशन करके तुमने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दिया. सपोज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज 5 मिली एम्पियर. तुमने यहाँ तक क्वेश्चन ले लिया. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है.
1 मार्क्स तुम्हें मिल गया, पूरा डिराइव करके डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दिया। अब तुम्हें बोलेगा व्हाट इज द कंडक्शन करंट, तुम बोलोगे साला कंडक्शन करंट क्या है, तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वही तुम्हारा कंडक्शन करंट है जब वो कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, मतलब यही मेरा सेम वैल्यू है कंडक्शन करंट। अब बच्चा लोग क्या करता है, इक्वेशन में देखता है I इक्वल्स टू IC प्लस ID, अब वो बोलता है व्हाट इज द कंटिन्यूअस करंट, जहां कंटिन्यूअस करंट बोलता है तो वो सोचता है IC प्लस ID, तो वो क्या करता है 5 मिली एम्पियर प्लस 5 मिली एम्पियर, वो लिख देता है 10 मिली एम्पियर, तो ये भी राइट हो गया, लेकिन यहाँ पे जाके रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, अगर ये है तो ये नहीं है, अगर ये है तो ये नहीं है, दोनों मिला के यहाँ पे 5 मिली एम्पियर ही होगा। इज इट ओके एवरीवन? हेलो, हाँ सर। सबको समझ में आया ना? तो तुम जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल रहे हो वही तुम्हारा कंडक्शन करंट है, वही तुम्हारा कंटिन्यूअस करंट भी है। इस बात को ध्यान से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन देता है। देखो जनरली इसके ऊपर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो सबसे एक चांस रहता है कि इसमें ये कंडक्शन करंट, कंटिन्यूअस करंट, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है 2-3 मार्क्स का। तो देखो कैसा एक क्वेश्चन देंगे, हम एक क्वेश्चन देंगे, इवन ये सब भी देता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, इसके बारे में लिख दिया, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ये तुम्हें लिख दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया या 1 मार्क्स का दे दिया, इसके साथ कंटिन्यूअस करंट दे दिया, 3 मार्क्स का दे दिया, हो गया। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये पूछ दिया, इसका कैलकुलेशन दे दिया, इसके साथ ये दे दिया, 3-4 मार्क्स का एक पार्ट हो गया। अगर ये पार्ट दे दिया तो बस तुम्हारा 3-4 मार्क्स यहीं से आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो। My first question is, a parallel plate capacitor has a circular plate each of radius 5 सेंटीमीटर, एक ऐसे करके पैरेलल प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट इज बीइंग चार्ज्ड सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप between its plate raised steadily at the rate of 10 to the power 12 volt per meter per second, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम इज गिवन 10 to the power 12 volt per meter per second. What is the displacement current? What is the continuous current? What is the conduction current? तो कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई dt, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 10 to the power -12, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में किया, 10 to the power -2 स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी दिया हुआ है 10 to the power 12, तो ये सबसे पहले कट गया, 8.854 इंटू पाई 3.14 इंटू 25 इंटू 10 to the power -4। अब जो चालू इंसान है वो ये दोनों को क्या करेगा, इसको 9 लिखेगा, इसको 3 लिखेगा, इसको 25 लिखेगा इंटू 10 to the power 4, तो क्या हो गया 75 और 9 कितना होता है, ये तो कैलकुलेशन तुम लोग कर सकोगे, 45 75 75 इंटू 9 कितना होता है, 75 इंटू 9, ये हो गया लगभग 675, तो 675 इंटू 10 to the power -4, 6.75 into 10 to the power -2 ampere, if I am not wrong. Is it clear? तुम इसको in general 0.0675 0.07 एम्पियर है, तो ये 0.7 एम्पियर लिखो, ये लिखो, बात तो एक ही है कि नहीं? तुम खुद ही बोलो, अगर 0.075 एम्पियर आंसर तुम लिख रहे हो और इसका जो एक्चुअल आंसर है सब कुछ एग्जैक्टली लिख के इसका 0.07, तो 0.07 और 0.0675 क्या है, एक ही है कि नहीं? बोलो। So by without calculator you can calculate this type of question. अब इसी को हम लिख देंगे कंडक्शन करंट, इसी को लिख देंगे कंटिन्यूअस करंट। तुम लोग एक ही जगह पे नहीं लिखना, तुम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको 1 नंबर में लिखो, नंबर 2 लिखे कि we know from the definition
continuous current is the displacement current. Same value we know from the definition. I is IC plus ID. They are the same, so the value is same. समझ में आया? दोनों को फिर जोड़ मत देना, ऐसा नहीं कि दोनों को डबल कर देना. The value is same. Is it okay? Yes, sir. Now see the second question. इसके बाद जो second question है, देखो इसका जो second question है वो है the voltage between the plates of a parallel plate capacitor is parallel plate capacitor 1 microfarad is changing at the rate of 5 volt per second. तो मतलब ये dv by dt दिया है. What is the displacement current? Continuous current, conduction current. तो देखो same question, displacement current C dv by dt. C कितना है? 1 into 10 to the power minus 6. dv by dt कितना है? 5. तो 5 into 10 to the power minus 6 एम्पियर. यही तुम्हारा हो गया IC, यही हो गया I. Is it okay everyone? Yes, sir. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें तुम्हारा अगर लक अच्छा रहा तो यही पार्ट से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, तुम्हारा काम तमाम. क्योंकि ओवरऑल ये शायद 4 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है. कभी कभी अगर ये नहीं देगा तो वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा. नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट इससे भी आसान है. नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले वो तुम्हें बोल सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, मतलब मेरे हिसाब से 8 से 10 बार या उससे भी ज्यादा, अगर हम लास्ट 15-20 साल का या जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीबीएसई का सिलेबस में अगर हम देखें तो कम से कम 8-10 बार एंट्रेंस बोर्ड एग्जाम में आया है ड्रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करने का तरीका क्या है. सबसे पहला बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ 3 डायमेंशनल वेव. तो हम लोगों ने मान लिया ये एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट करेगा. ये है वाई एक्सिस और ये जो एक्सिस है ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम भी लिख सकते हो, नॉट भी लिख सकते हो. और मैंने लास्ट दिन भी ये गलती किया था, स्पेस को सेम रखो तो ज्यादा अच्छा होगा. ছেড়ে দিতে হবে. अब ये है z एक्सिस. तो अनन्या अनन्या পুজো হচ্ছে তোদের বাড়িতে? হ্যাঁ হচ্ছে তো। ফ্রাইড রাইস কবে খাওয়াবে তোদের বাড়িতে পুজোতে? এবার খাওয়া দাওয়া নেই। খাওয়া দাওয়া নেই? না, কে আসবে বলো তো এর মধ্যে? আচ্ছা মিষ্টি ফিষ্টি তো খাওয়াবি, আমি আসবো. মিষ্টি ফিষ্টি তো খাওয়াবি? হ্যাঁ। মিষ্টি ফিষ্টি না খেলে খাওয়ালে তো বাবার থেকে অন্য কিছু খাবো. গিয়ে বলবো আমি প্রসাদ খেতে এসেছি, প্রসাদ যখন খাওয়াননি অন্য প্রসাদ খাওয়ান. আমি আর ম্যাম দুজনে মিলে বসে, ঠিক আছে? একদম। ইনফ্যাক্ট সেটা হলে আমরা বেশি খুশি হব প্রসাদ খাওয়াচ্ছে. ওটা নেই তো। সে নেই, তোর বাবার জোগাড় করতে কতক্ষণ লাগবে? নেই ইন দ্য সেন্স দুর্গাপূজা দুর্গাপূজা। নবমী পর্যন্ত খায় না তো? নবমী না দশমী? নবমী পর্যন্ত খায় না, না দশমী? নবমী অবধি। তো দশমীর দিন আসবো. যাই হোক, হলো. এটা একটা ওয়েব. নবমী অষ্টমী নবমীর দিন এসে বলে যাব, দশমীর দিন কিন্তু প্রসাদ খেতে আসবো. এটা হচ্ছে একটা ওয়েভ, এটা মনে কর ইলেকট্রিক ওয়েভ.
So basically what happened, see, this is the direction of x in which the wave is propagating. So this is the one axis in which the wave is propagating, and at the same time this one is another one. So means basically what happened, one for the electric field, suppose, another one for the magnetic field. So they are moved like this. This is the combined effect. So this is the one, the suppose the electric field one. So this one is the magnetic field. খুব সুন্দর বানালাম তো। আমি এইগুলো ভালো করে করে ইউটিউবে মার্কেটে ছাড়লে ভালোই পয়সা কামাতে পারতাম, যাই হোক। So this one is magnetic BM. Now see, we know from class 11 equation of any wave is A sin omega t plus minus phi. Phi means 2 pi by lambda into x, and that x as we propagating along the x-axis. If the wave is propagating, suppose along the y-axis, so here we can write y. Okay. Acha, this sign can be cos also. So as this one is sine, so what we write for electric field in which axis? Y-axis, and this is the maximum value of electric field, sine omega t. Suppose we write minus 2 pi by lambda x. अब देखो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें जीरो करना पड़ता है। जैसे ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0 किया तो एक्स का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। दैट मींस ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो इसका वैल्यू क्या आता, नेगेटिव। तो ये वेव इधर नहीं जाके ये वेव इधर आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वेव बेसिकली किधर मेरा जा रहा है, मेरा ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये वाला भी मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और अगर यहाँ पे प्लस हो जाए तो ये बैक करके आएगा, मतलब ये ऐसे जा रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? यही मानो मैं कॉस में लिखना चाहता था, ये मानो मेरा वेव है और ये मेरा बैक करके आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता था, ये वाई एक्सिस है, मानो ये एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहता था वाई ई एम कॉस, ये बैक करके आ रहा है तो ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो जो वो देना चाहेगा जैसा कुछ करे, हम लोग को तो ड्रॉ करने बोला है तो हम लोग इसके रेफरेंस में ये लिखा। अब जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो, the wave is propagating along the x-axis, y-axis we choose for the electric field, so remaining axis is z-axis, so the magnetic field is z-axis। यहाँ पे bm होगा और ये पार्ट जैसा एग्जाम का एग्जामिनर दे के रखेगा वैसे ही छाप देना है। So this is the wave you have to draw. For this wave you can get 1 to 2 marks। ठीक है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू एबल टू रिमेम्बर देम, इसके ऊपर उठा के एकदम उठा के 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 3 से 4 मार्क्स। जैसे एक बात याद रखना, E इक्वल्स टू BC, BC मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, इसका भी मैक्सिमम आएगा, इसको अगर नॉर्मल रखेंगे तो इसको नॉर्मल रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा। दूसरा है कि ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी, वी ऑल नो दिस ऑलरेडी। सेकेंड वाला है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 बाई टाइम होता है, ये भी वी ऑल नो। एक और जो मुझे याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये वाला मुझे याद रखना पड़ेगा। अगर तुम इतना याद रख सकते हो तो इसके ऊपर जितना न्यूमेरिकल देगा तुम आराम से हंसते हुए कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। अमन बुझते पारछिस? Yes, sir. Okay. So now let's try some numerical, then you understand ki they are really very easy question, and this chapter most of teacher neglect this chapter, इसको पढ़ाता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन ये very interesting chapter है। ठीक है?
और वेरी इसके ऊपर 3 से 4 मार्क्स, एकदम आसान आसान क्वेश्चन देता है, तुम लोग इसको एकदम फुल मार्क्स मिल सकता है, बच्चा लोग इसको छोड़ देता है। जैसे मैं देखो अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको इतना अच्छा हुआ है, इसको मैं अभी मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by 2 into 10 to the power minus 7 sine 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t Tesla। अब क्या क्या निकालना है? फाइन। नंबर 1, डायरेक्शन इन विच वेव is propagated. Number 2, find wavelength. Number 3, find angular frequency. Number 4, they can ask you frequency. Number 5, they can ask you time period. Number 6, which is very very important, write the equation of magnetic field दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, मेरा पहला काम होगा ये जो लिखा है इसको मैं जनरल फॉर्मेट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? bm साइन, मेरे पास क्या था, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इंटू ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी हो गया प्लस हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स हो गया। इज इट ओके? अब मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, देखो मैं अगर इस पूरा वैल्यू को 0 करूं तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? इस पूरा को दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0, सो एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट मिल गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर z लिखा रहता तो मैं बोलता नेगेटिव z एक्सिस। इज इट क्लियर? एग्जामिनर लोग कभी कभी इसको बदमाशी करके x के जगह पे z भी दे देता है, ठीक है, तो चलो मैं इसको z कर देता हूँ, तब तुम लोग को ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये हो गया z एक्सिस। इज इट ओके? बिकॉज दे कैन मूव इन एनी एक्सिस। इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पे भी हमें तब z लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने z कर दिया है ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नेगेटिव z एक्सिस। तो नेगेटिव z एक्सिस में मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। अब मुझे चाहिए लैम्डा सबसे पहले। तो मैं देखो यहाँ पे इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा ना, तो z तो मेरा सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3, that is 4 pi 10 to the power minus 3 meter. Is it okay? You can change it, pi का value 3.14 करके। Is it okay? Yes sir. After that, my next thing is omega. How you find out omega? You can compare this. Omega equals to 1.5 into 10 to the power 11 radian per second. नंबर 2 मिल गया। तुम्हें अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, फ्रीक्वेंसी इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई 2 पाई हर्ट्ज। तीसरा वाला आ गया, चौथा वाला हो गया। टाइम पीरियड अगर पूछा है, सॉरी ये 2 नंबर था ना, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। टाइम पीरियड तो इससे तो आसान कुछ है ही नहीं। So 2 pi by 1.5 into 10 to the power 11 सेकेंड। हालांकि क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद राइट द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन के लिए, जैसे मेरा यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
है कि नहीं बोलो। কি বললা? এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইকুয়েশন, এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমার তো হুম। সবার ফার্স্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু চাই, তাহলে আমি কি হুম। লিখবো? E equals to BC. হুম। B is how much? B is 2 into 10 to the power minus 7. C is how much? C into 10 to the power 8. So what you have? 60. ওহো, আমি তো একটা জিনিস ভুলেই গেছি। আচ্ছা, একটু ভালো করে ফিজিক্স পড়, দেখবি বোধ যে ফিজিক্সই সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবি। আচ্ছা, so now we get the value of electric field. So what is the SI unit of electric field? Newton per coulomb or volt per meter. So as it is related with voltage and all, so it's better you represent it in volt per meter. But by mistake, if you write Newton per coulomb also, that is also not wrong. As we mention it here, Z, Y, तो bachlo के X, আমি যদি x লিখতাম তাহলে z লিখতাম, हमने यहाँ पे z लिया है तो मैंने यहाँ पे x लिखा है। x em मैक्सिमम कितना है? 60। बाकी मैंने क्या बोला? एज इट इज, छाप दो। छापना मतलब समझते हो ना, एकदम छाप दो, जैसा है वैसा एकदम छाप दो, और यहाँ पे लिखो वोल्ट पर मीटर। इज इट ओके? यस सर। तो लवली क्वेश्चन। अब हम तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, थोड़ा ही पढ़ाएंगे क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि परसों और बच्चा लोग आया ही नहीं, कल फिर भी अच्छा खासा बच्चा आया था, आज देखो फिर सिर्फ कितना जन आया है? सिर्फ 5 जन बच्चा है तुम लोगों में से। मैं इसलिए थोड़ा कम ही पढ़ा रहा हूँ। मैं सोचा हूँ कि दुर्गा पूजा के बाद तुम लोगों को ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे इस चैप्टर के लिए एक और क्लास चाहिए होगा, तो देखता है अगर कहीं पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद मे बी नेक्स्ट वीक में भी मैं मुझे मिलेगा, मंडे तो मिलेगा ही, ट्यूसडे और वेडनेसडे शायद मैं नहीं रहूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि वेडनेसडे को मैं आ जाऊंगा शायद, देखता हूँ जैसे जैसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। द प्लैनेट sorry, the plane electromagnetic wave of frequency, the 2 number question, the plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz, ठीक है, travels in a free space along the x direction, along the x axis at a particular point in the space and time. Electric field is 6.3 J volt per meter. What is B? What is the value of B and wavelength? देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है? कुछ नहीं, E equals to BC, तो B equals to E by C। E कितना है? 6.3, C कितना है? 3 into 10 to the power 8, तो 2.1 into 10 to the power minus 8 टेस्ला। इज इट ओके? तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लूंगा? देखो x इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये J पे है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? खुद ही बोलो कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए? बोलो 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 बोलो, हेलो, जल्दी जल्दी बोलो ना। अरे J है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, बचा कौन? শুনতে পাচ্ছিস তোরা? হ্যাঁ। বল কি হবে? জেড z মানে কি? মানে কি? তাই তো? হুম। এবার বলেছে তোকে ওয়েভলেন্থ বার করতে, তো আমি কি বললাম? c ইকুয়ালস টু ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভলেন্থ। দেখ c হচ্ছে ভেলোসিটি অফ লাইট 3 into 10 to the power 8, ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 25 into 10 to the power 6, আর ওয়েভলেন্থ তো লাগবে, তো ওয়েভলেন্থ হয়ে যাবে 3 into 10 to the power 8 by 25 into 10 to the power 6, তার মানে 300 by 25, 25 50 75 100 200 300 মানে 12 मीटर। এবার কখনো কখনো এর পরের ক্লাসে, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेव का डिफरेंट डिफरेंट रेंज होता है, उस रेंज के हिसाब से ये पूछ सकता है। ये 12 मीटर आया, तो 12 मीटर आया है, तो ये कौन सा
रे में आएगा, मतलब कौन सा वेव, कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा वेव है 12 मीटर में तुम्हारा रेडियो वेव है। तो ये कौन सा वेव है, ये रेडियो वेव है, रेडियो वेव। तुम्हें पूछ सकता है कि वेव का नाम क्या है, तो रेडियो वेव। अब इसके बाद फिर जब रेडियो वेव है, रेडियो वेव का 2 या 3, मिनिमम 2 पूछता है, कम से ज्यादा से ज्यादा 2 यूजेस। तो एक तो तुम्हारा ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन मतलब हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते, दिस ऑल आर द रेडियो वेव्स, ठीक है, हेलो। और दूसरा है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब मेडिकल साइंस में हम लोगों को कितना सारा चीज में यूज होता है, सोनोग्राफी, फिर वो पाइप घुसाता है पेट के अंदर, अंदर का सब देखने के लिए, वो सब में एंडोस्कोपी। तो फिर रेडियोलॉजी से बॉडी के अंदर में ट्यूमर वगैरह है कि नहीं, वो सब में। तो मेडिकल मेडिकल इसमें बहुत सारा रेडियोलॉजी, बहुत सारा जगह पे ये वेव यूज होता है। ओके, हेलो। হ্যাঁ। আর একটা কোশ্চেন আমি তোদেরকে করাতে পারি, কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম। তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস আরো বলে দিই, তাহলে আমার থিওরিটিক্যাল পার্টটা পুরো কমপ্লিটই থাকবে। इसके साथ एक और चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब समझ ही रहे हो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और यही सी अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई मीडियम का बात करें तो हमें एप्सिलॉन एम म्यू एम लेना पड़ेगा। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था इवन आईआईटी में कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन क्या है, तो घबराने का कुछ नहीं है, 1/c², मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1 स्क्वायर, मतलब L-2t²। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन आया था एक बार, सोचो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन, सोचो कितना इजी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, अब बच्चा लोग सोचता है कि क्या टफ क्वेश्चन पूछा है। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ओके, अब देखो इसके ऊपर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोगों को मालूम ही है, लाइट में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये हो जाएगा रूट अंडर एप्सिलॉन एम म्यू एम, मतलब एप्सिलॉन एम म्यू एम बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब हमें एप्सिलॉन एम मालूम है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू एम मालूम है, म्यू आर म्यू नॉट। तो इस हिसाब से एप्सिलॉन सॉरी आर नॉट इंटू म्यू आर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो क्या हो गया एप्सिलॉन आर म्यू आर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन आर म्यू आर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच ऑलवेज फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर कैन आस्क यू। अब हाँ, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तुम लोगों को काफी हेल्प होगा। देखो क्वेश्चन इज दैट electromagnetic wave travel in a electromagnetic wave electromagnetic wave travel in a magnetic field at a speed of 2 into 10 to the power 8 meter per second। तो मतलब ये velocity of light in medium है, electromagnetic wave travel in a magnetic field at a speed of 2 into 10 to the power 8 meter per second। स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, मतलब कोई मीडियम में इंटर किया है। द रिफ्रैक्टिव the relative permeability of the medium is 1/2। relative permeability मतलब mu epsilon r, relative permeability, sorry permittivity ना, so mu r is 1/2। find the relative permittivity of the medium, मतलब epsilon r तुमसे पूछा है। is it okay everyone? तो तुमसे इसमें एप्सिलॉन आर पूछा है, तो सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है।
कि refractive index, that is velocity of light by at any medium, अभी मैंने निकाल के रखा है ये equals to epsilon r mu r. So refractive index देखो 3 into 10 to the power 8 by 2 into 10 to the power 8, that is epsilon r mu r. 3 by 2 is root under epsilon r mu r, squaring both side. 9 by 4 epsilon r mu r, मेरे पास mu r दिया है, epsilon r पूछा है, तो 9 by 4 into epsilon r is 1 by 2, that is 9 by 2, that is 4.5. Okay, Yes, sir. कुछ गलत किया? 3 by 2 না, এরা কি করেছে 9 by 4 epsilon r, ও না এখানেই ভুল করেছে এরা, আমি ঠিক করেছি। হ্যাঁ আমি তো ভুল করি না, আমার তো ঠিক করাই উচিত। চলো ঠিক है, so the answer is 4.5. Is it okay everyone? Yes, sir. तो मैं